वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम COET 2024 के क्वेश्चन नंबर 21 to 25 देखेंगे। इफ़ ABC आर 3 सिंगुलर मैट्रिसेस गिवन बाय दिस मैट्रिसेस देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ABC। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तो कभी भी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो होता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। यहाँ से हमको ए की वैल्यू मिलेगी क्योंकि ए की ही अननोन है। सो डिटर्मिनेंट विल बी 2a minus 12, दैट विल बी 0। सो ए विल बी इक्वल्स टू 6। ऐसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मिलेगा 6b माइनस 5a इक्वल टू 0। 6b माइनस a की वैल्यू यहाँ से 6 है तो 5 इंटू 6b माइनस 30 इक्वल टू 0। सो यू विल गेट b इक्वल्स टू 5। a b दोनों की वैल्यू मिल गई। अब c निकालने के लिए पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं। a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 5 है, तो यहाँ 6 रखें, यहाँ 5 रखें, तो हमारे पास हो जाएगा 11 प्लस c प्लस 1, 6 प्लस c एंड c। नाउ फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो 11 प्लस c इंटू c माइनस 6 प्लस c इंटू c प्लस 1। So this will give you 11c plus c square minus 6c plus 6 plus c square plus c। 11c plus c square minus 6c minus 6 minus c square and minus c। So देखते हैं ये 11c, ये 6c minus c, so this will be minus 7c। So 11c and minus 7c will give you 4c, c square पॉजिटिव c square नेगेटिव कैंसिल माइनस 6। और ये भी एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये 0 से इक्वेट करेंगे तो c की वैल्यू हमको मिल जाएगी 3/2। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ABC। तो सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 3/2। So you will get 2 1 जा 2 3 जा 3 5 जा 15, 15 3 जा 45। Option 3 is correct. Now let us see the next question. The value of the integral whose limit is from log 2 to log 3 e to the power 2x minus 1 by e to the power 2x plus 1 dx is। यह क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, log of 2 log of 3 you have to take common e to the power x। e to the power x को अगर कॉमन लेंगे तो अंदर में e to the power x बचेगा माइनस 1/e to the power x। e to the power x नीचे से भी कॉमन, e to the power x प्लस 1/e to the power x dx। so you can see e to the power x and e to the power x will get cancel out and you will be left with, आपके पास बचेगा log of 2 log of 3 e to the power x। जब ये e to the power x को हम न्यूमरेटर में लेंगे तो इस लॉ ऑफ इंडिसेस से इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, वैसे ही इसका भी पावर नेगेटिव हो जाएगा dx। नाउ लेट e to the power x plus e to the power minus x is equals to t। so you will differentiate it। तो e to the power x minus e to the power minus x dx equals to dt। तो देख सकते हैं कि ये पूरी वैल्यू e to the power x e to the power minus x dx this will get replaced by dt, but we have to change the limit also। so when x is equals to log 2 e to the power log 2 plus e to the power minus log 2 equals to t। e to the power log 2 का मतलब हो जाएगा 2 और e to the power minus log 2 का मतलब होगा 1/2 equals to t। so this will give you
2 2 4 plus 1 5/2 equals to t. In the same way, x equals to log 3 e to the power log 3 plus e to the power minus log 3 इक्वल टू टी. तो ये होगा 3 plus 1/3 इक्वल टू टी. सो 10/3 इक्वल टू टी. So our integration changes to 5/2 to 10/3 1/t dt. So this is log of t. 1/t का इंटीग्रेशन log t, लिमिट 10/3 to 5/2. So log of 10/3 minus log of 5/2. And you know that log of m minus log n is log m upon n. So log of m upon n, अपॉन लेंगे तो फिर उसको डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई में 2/5 लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा log of 4/3. एंड log m upon n again can be written as log m minus log n. So option 2 is correct. Let us move on to the next question. If vector A, vector B and vector C are three vectors such that vector A plus vector B plus vector C equal to 0, where vector A and vector B are unit vectors and vector C is equals to 2, then the angle between vector B and vector C. So here A and B are unit vectors, that means this magnitude of vector A is 1, magnitude of vector B is also 1, and magnitude of vector C is given to you as 2. We have to find out the angle between B and C. हमको B और C के बीच का एंगल निकालना है. तो ये रिलेशन यूज़ करते हैं जो कि है A plus B plus C equal to 0. So vector A is equals to minus of vector B plus vector C. Now if you multiply vector A with vector A, that is minus of this multiplied by A. और इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि वेक्टर A की वैल्यू माइनस ऑफ वेक्टर B प्लस वेक्टर C है. इसको यहाँ पुट करते हैं फिर से. माइनस ऑफ वेक्टर B प्लस वेक्टर C एंड अगेन माइनस ऑफ वेक्टर B प्लस वेक्टर C. So vector A into vector A will give you mod of vector A square, and this will give you B plus C, vector B plus C, vector B plus vector C. So now multiply vector B into vector B, vector B into vector C, vector C into vector B, vector C into vector C. So यहाँ से आपको मिलेगा मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड बी इंटू मॉड सी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी द होल स्क्वायर. सो यू नो दैट वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर, so this will be 1 square, this also be 1 square, 2 into b into c, and this will give you 2 square. So this will give you 1 1 2b into c plus 4. So this is 1 to 1 cancel, and this will give you minus 4 equals to 2 into b into c. So this is the dot product of two vectors. If you cancel out this, minus 2, और ये हो जाएगा mod of vector b mod of vector c into cos थीटा. एंगल निकालना है तो थीटा की जरूरत तो पड़ेगी. -2 इक्वल्स टू 1 इंटू 2 कॉस ऑफ थीटा. 2 to 2 कैंसल, तो -1 इक्वल्स टू कॉस थीटा. सो दिस इज नथिंग बट कॉस ऑफ पाई. कॉस पाई इक्वल्स टू कॉस थीटा. तो -1 कब आता है? कॉस पाई में आता है, मीन्स कॉस 180 डिग्री में. सो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई हो जाएगी.
theta is equals to pi, and pi that is 180 degree. So option 4 is correct. अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 फंक्शन दिए हैं। अगर आप चारों फंक्शन के डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी को अगर चेक करेंगे तो आपको 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम लग जाएगा। तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स वो आपको याद होने चाहिए, जैसे f(x) इज इक्वल्स टू mod x। mod x जो फंक्शन होता है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन बिकॉज इसका ग्राफ आप बनाएंगे तो बिना पेन उठाए इसके ग्राफ को आप बना सकते हैं। जैसे कि हमारा कंटिन्यूस फंक्शन का डेफिनेशन होता है, इनफॉर्मल डेफिनेशन, दैट इफ यू कैन ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग अप द पेन देन इट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। और डिफरेंशियबिलिटी की बात करें इसके, तो इट इज डिफरेंशियबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 0, एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 0। ग्राफ से भी ये देख सकते हैं कि जहाँ इसके शार्प एज हैं, ये पॉइंट जहाँ इसका शार्प एज है वो है एट x इक्वल टू 0। तो शार्प एज पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। वैसे ही आपको ये याद रखना है कि f(x) इक्वल्स टू mod of x minus a, this function is not differentiable at x इक्वल टू a। वैसे ही ये हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है x माइनस 1 x माइनस 2, इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 and 2। ऐसे ही आपको याद रखना है f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। इट इज नॉट कंटिन्यूस एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट इंटीजर वैल्यूज। इंटीजर वैल्यूज के लिए ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल नहीं होता, बाकी हर जगह ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है। ऐसे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको याद रहेंगे, उससे आपका ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बहुत जल्दी बनेगा। जैसे फर्स्ट फंक्शन देखते हैं, mod of x माइनस 1 प्लस mod of x माइनस 2। अब इसमें अगर इसको फर्स्ट ऑप्शन से कंपेयर करते हैं, इज़ डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 0। तो अगर आपको ये याद है कि f(x) इज इक्वल्स टू mod of x माइनस a इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, in the same way mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 is not differentiable at x equal to 1 and 2, तो उससे आपको ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि a का 1, तो दो ऑप्शन तो ऑलरेडी आपके डिस्कार्ड हो गए। अब आपको सिर्फ 3 और 4 से ही आंसर निकालना है। तो अब आपका एक ऑप्शन फिक्स भी हो गया कि a का 2 है। mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 is continuous everywhere। अब देखते हैं ऑप्शन बी, x minus mod x is differentiable everywhere except at x equal to 0। ये हो सकता है। x minus mod of x minus mod of x is not differentiable at x equal to 1। ये नहीं हो सकता क्योंकि हर जगह डिफरेंशिएबल हो जाएगा। एंड इट इज़ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ये हो सकता है। तो बी के लिए 1 और 4 दोनों आंसर्स हो सकते हैं। सी के लिए चेक करते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 0। तो एवरीवेयर तो डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो सी का 1 नहीं हो सकता, किसी ऑप्शन पे सी का 1 है भी नहीं। इस डिफरेंशिएबल, इसको देखते हैं कि इस डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, तो इंटीजर वैल्यू पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो सी का 4 भी नहीं हो सकता, किसी ऑप्शन पे दिया भी नहीं है। और वैसे भी हमने सी का 2 वाला ऑप्शन को कैंसिल कर चुके हैं, तो हमारे पास सिर्फ सी का 3 बचा है, तो सी का 3 ही है। अब हमारे 2 फिक्स हो गए हैं, ए का 2 और सी का 3।
ए का 2, सी का 3 फिक्स हो गए हैं, हमको सिर्फ डी को चेक करना है और बी को चेक करना है। अब डी को देखते हैं, एक्स ऑफ मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू 0 एंड इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। तो अब हमें बस चेक करना पड़ेगा कि बी के लिए 1 सही है या 4th सही है और डी के लिए 1 सही है या 4th सही है। तो किसी भी एक के लिए चेक कर लेते हैं। चलिए हम लोग डी के लिए चेक कर लेते हैं। तो डी जो है हमारा वो है फंक्शन एक्स मॉड एक्स। इसको रीडिफाइन करते हैं फंक्शन को, क्योंकि मॉड है। व्हेन एक्स विल बी लेस देन 0 तो ये x इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स होगा। मीन्स डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इन दैट कंडीशन इट विल बी x इंटू एक्स, सो दैट विल बी एक्स स्क्वायर। सो जब RHD चेक करते हैं इसका, मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव, सो आपको मिलेगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, so that will be x square minus 0 by x, so it will give you limit x tend to 0 x, so this will give you 0. And in the same way LHD left hand derivative, limit of x tends to 0 minus fx minus f0 upon x minus 0, so that will be minus x square minus 0 by x. So from here you will get limit x tends to 0 minus of x. So minus of x का भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये फंक्शन जो है x mod x, it is differentiable at x equal to 0 as well. x equal to 0 पे भी differentiable है and it will be differentiable everywhere. बस ये मॉड x के कारण हमको डाउट था कि वो 0 पे डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, इसलिए हमने 0 पे चेक किया। लेकिन ये तो हमको मिला कि इट इज़ डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 0 की जगह हमको ये 0 पे भी डिफरेंशिएबल मिला। तो हमारा ऑप्शन जो डी का 1 है ये गलत हो गया, क्योंकि ये तो 0 पे भी डिफरेंशिएबल है। सो देयरफॉर इस ऑप्शन के गलत होने के कारण हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, जो है थर्ड ऑप्शन, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विथ रेस्पेक्ट टू द रेडियस r एट r इज द क्यूब रूट ऑफ 1.331 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, that will be 3 pi r square. Let us denote it with s. So s is 3 pi r square and it is changing at the rate with respect to r. So we will differentiate it with respect to r, ds by dr, d upon dr of 3 pi r square. So after differentiating you will get 3 pi into 2r and dr by dr will get 1, so ये हो जाएगा 6 pi r। यहाँ पूछ रहा है हमको एट द क्यूब रूट ऑफ 1.331, सो दैट इज, आपको पता होना चाहिए कि वो किसका क्यूब रूट है, दैट इज 1.1, सो 6 pi of 1.1, so that will be 6.6 pi। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। So option number 2 is correct. For more updates, subscribe the channel,